हाय, लेट मी टेल यू ए स्टोरी। आज से 80 साल पहले सुबह सुबह नेगेटिव टेम्परेचर में दो लोग एक ऐसे एक्सपीडिशन पे निकलते हैं जिसने इतिहास और भविष्य दोनों बदल दिए। 80 years ago, two people, right in the morning, walked out to an expedition that didn't just change the past, the history, but also set a course for the future. They walked through tough snow, they walked through thousands of meters, they walked through rocky steps with sloping snowfields, and finally reached where they should have been. कौन थे ये दो लोग? The two people were Sir Edmund Hillary and the Sherpa Tenzing Norgay. Yes, you guessed it right. I'm talking about the first two people ever in the history of humankind to have climbed the Mountain Everest. But why am I telling you this story? Or why am I starting with this? Because it has a lot of resemblance. The first resemblance is कि क्यों एडमंड हिलैरी जो थे उन्होंने उस पर्टिकुलर दिन वो फतह हासिल की जो उनसे पहले ट्राई करने के वाले कई लोग नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद करना बाकी लोगों के लिए आसान हो गया। What changed? The only change that was, the change was not of courage. The change was not of fortitude. उनसे पहले भी लोगों के अंदर करेज था, उनसे पहले भी लोगों के अंदर ब्रेवरी थी। इस बार क्या बदल गया? 1953 की उस सुबह क्या बदला? 1953 की उस सुबह दो लोग जिन्होंने अपने से पहले जितने भी लोग थे उनकी गलतियों से सीखा। जितनी भी उन्होंने मिस्टेक्स करी थी, दे लर्नड एंड डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन, developed an understanding of the path they were about to summit. Yes, dear friends, what changed was the understanding. What changed was getting to know how to climb that mountain, what can be the mistakes that can be made, and what can be the mistakes that will cost them their life. And that is how two people made history. But not just understanding, there is another beautiful coincidence here that I would like to talk about. क्या आप में से कोई बता सकता है what was the date on which these two people, these two brave hearts summited the Mount Everest? Dear friends, it was 28th of May, 28 मई। अरे, और 28 मई को क्या है? यस, 28 मई को हमारा अपकमिंग प्रीलिम्स एग्ज़ाम है ना? शार्प कोइंसिडेंस। 80 ईयर्स पहले 28 मई को इतिहास रचा गया था क्योंकि दो लोगों ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी। 80 साल बाद 28 मई को मुझे और आपको इतिहास रचना है क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। एंड दैट इज़ वाई फ्रेंड्स, आई वेलकम यू to this platform, to this initiative, Understand UPSC. It is a journey from you to us, from you being isolated to us being a team. You be the Edmund Hillary and let me be the Tenzing Norgay, and let's climb the summit on 28th of May. So, to begin with, there are a basic few questions that I would like to address in this particular video. Who am I? मैं हूँ कौन? Okay, not from a philosophical point of view. From a philosophical point of view, it might sound कि मैं आत्मा हूँ, but no, I don't want to scare you at this point of time. मैं एक इंसान हूँ, तो आत्मा नहीं। I will not talk about the आत्मा aspect. उसके बारे में कभी बाद में बात करते हैं. But who am I? Why should you listen to me?
I'll tackle this in three things. A bit of a background about me. My name is Satyam Jain. I am a computer science graduate from University of Delhi. And what are my credibilities and what are my experiences? So though this would sound like, मुझे तो क्योंकि ऐसे साउंड करता है कि आप अपनी अचीवमेंट्स खुद बताते हैं, तो इट साउंड्स लाइक अ शो ऑफ. But trust me, I do not believe that my credibility is my biggest achievement. No, it is not. That is why I have categorized them into two things. One is the credibility aspect and other one is the achievement aspect. So, what are my credibilities? My only credibility in the field of UPSC, first is that I have given two UPSC interviews. One in 2021, that is last year, and then now again in 2022, and the results of this are awaited. Right? So, in my experience, talking about my experience, I have been mentoring students in the field of UPSC CSC from the past 3 years. I began mentoring in 2020, early 2020. स्टार्टिंग के 6 महीने में पर्दों के पीछे काम कर रहा था. आई वॉज वर्किंग विद द कंटेंट टीम, with the development team, etc. And then I came to the forefront because I had a passion in teaching. I started teaching on some platforms, and then came the biggest turn in my life, जिसमें से आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, that I got associated with IS Corridor, और फिर उससे स्पेशल फोकस ग्रुप की जर्नी और उसकी अचीवमेंट्स और वहाँ से सिलेक्शंस एंड एवरीथिंग, वो एक अपने आप में एक स्टोरी है जो हम कभी और बात करेंगे. बट फॉर नाउ I have an experience of 3 years teaching in the field of UPSC, but I have an experience of even more than 3 years in the field of failing in UPSC. Yes, and with that I come to my biggest achievement. What is my biggest achievement? My biggest achievement is that I have failed. Yes, this is my biggest achievement. अरे क्या? How can failing be an achievement? Yes, my failing is an achievement. For whom? For me and for the people who will not fail because of me being failed. क्योंकि मैं अपने प्रीवियस अटैम्प्ट्स में गलतियाँ कर चुका हूँ, मैं अपने प्रीलिम्स में गलतियाँ कर चुका हूँ, अपना प्रीलिम्स बैक टू बैक फेल कर चुका हूँ. इसलिए आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू टेल यू कि आपको क्या नहीं करना है एंड आपको क्या करना है in the upcoming 3 weeks to our exam. So, why should you listen to what I have to say? क्यों? देखिए, 2 रीज़न है. पहली बात तो ये है कि अच्छा नहीं लगता है देख के जब बैक टू बैक किसी के साल ख़राब हो रहे होते हैं. ना खुद को अच्छा लगता है जब अपने साथ ही होता है, और किसी दूसरे के साथ भी होता है तो नहीं अच्छा लगता है. सच है, हकीकत है ये. अगर इंसानियत से सोचो तो नहीं अच्छा लगता है. बिल्कुल ही कोई आपका दुश्मन ही है तो अलग बात है, बट जब तक आप एक इंसान के तरीके से सोच रहे हो तो अच्छा नहीं लगता है. एंड दिस इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई आई स्टार्टेड टीचिंग इन द फील्ड ऑफ UPSC, बिकॉज आई हैव फेल्ड, बिकॉज आई नो वॉट इट टेक्स टू फेल. वॉट इज़ द बर्डन ऑफ फेलियर, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है, मैं इसको झेल चुका हूँ. एंड देन आई करेक्टेड माई कोर्स एंड आई मूव्ड ahead and I got success and I reached to this particular level with my results being awaited. So you should listen to me because first I have failed. Second, किसी की भी बात सुन रहे हो, अगर वो सेंस बना रही है तो उसको फॉलो कर लो. अगर सेंस नहीं बना रही है तो मत सुनो, छोड़ दो. सिंपल है ना. देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट तो कोई है नहीं. तो मेरी बात सुन लेना. अगर समझ आए, अगर लगे कि सेंस बना रही है, अगर लगे कि हेल्प कर रही है, अगर लगे कि इम्प्रूव हो सकता है इससे कुछ, तो सुन लेना. एल्स इंटरनेट आपका, डेटा आपका, फ़ोन आपका है ना. खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सपेक्ट. ओके, व्हाट इज़, ये मोर इम्पॉर्टेंटली, वाई दिस प्लेटफॉर्म, वाई अंडरस्टैंड UPSC, वाई एम आई टॉकिंग अबाउट यू टू अस. वैसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सब बोल देते हैं कि
इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यू नीड अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, यू नीड टू नो सर्टेन थिंग्स। लेकिन क्या? ओके, आई नीड टू अंडरस्टैंड, बट वॉट? दैट इज़ वॉट आई एम हेयर टू टेल यू. And with that comes the second thing. Those who have understood, and this is very serious, please listen to it carefully. Those who have understood are the ones who conquer. Conquer repeatedly. Please pay attention. एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें मिलियन बच्चा फॉर्म भर रहा है, जिसका सक्सेस रेशो पता नहीं क्या ही है, उसमें कोई इंसान बार बार अपनी स्टेजेस क्लियर कर रहा है. कैसे कर रहा है यार? एक इंसान 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है. एक इंसान 6 बार इंटरव्यू दे देता है. एक इंसान 3 4 बार रैंक निकाल लेता है. कैसे? कुछ तो इसके कोर पे एस्पेक्ट्स होंगे ना, कुछ तो ऐसे इसके बिल्कुल डेप्थ में कुछ चीज़ें होंगी ना, कुछ बेसिक स्टफ होगा ना, कुछ सिमिलैरिटी होगी ना, कुछ पैटर्न्स होंगे, कुछ ट्रेंड्स होंगे, राइट? कौन बताएगा? मेरे घर में तो भाई कोई आईएएस नहीं है. मेरे तो कोई मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, अंकल कोई आईएएस नहीं है, या उनके बच्चे फॉर देट मैटर. तो कौन बताएगा? अब क्योंकि कोई बता नहीं पाता है, क्योंकि कोई बताता नहीं है, या बताना चाहता नहीं है, या हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं, वी एंड अप वेस्टिंग आवर ईयर्स. ये नहीं करना है. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए ही ज़रूरी है, ये आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है, ये देश के लिए ज़रूरी है. तो वो जो ट्रेंड्स हैं, वो जो पैटर्न्स हैं, वो जो कुछ लोग समझ गए हैं, दिस इनिशिएटिव इज़ नथिंग बट टू डेमोक्रेटाइज दैट नॉलेज बेस, टू टेल पीपल भाई ऐसे होता है, टू मेक यू अंडरस्टैंड. एंड वंस यू अंडरस्टैंड, you'll conquer. You'll be there in Ben Hillary right on 28th of May. 80 years. Okay? तो there is a long term plan. लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान पे भी क्यों बात करें यार, है ना? एग्ज़ाम पास आ रहा है, क्यों मैं आपकी 5 मिनट भी वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ में कि लॉन्ग टर्म प्लान क्या है. इस पर आराम से बाद में बात करेंगे. देयर इज़ अ गुड प्लान, देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान, अ गुड प्लान टू डू थिंग्स, टू मेक थिंग्स ईजी. एंड अभी लेट्स टॉक अबाउट द इमीडिएट प्लान, द वेरी शॉर्ट टर्म प्लान, द प्लान फॉर नेक्स्ट 3 weeks. द प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 weeks. तो देखिए, वाई इज़ इट कि हम बार बार इस एग्ज़ाम की, इस प्रीलिम्स की साइकिल में फंसते रहते हैं, हमें मेंस लिखने को मिलता नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है, जो हमें पता होनी चाहिए. देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हार्डवर्क एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई भी एक सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट है तो वो कर रहा है. क्योंकि अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, तो जब मैं अपना पहला दूसरा अटैम्प्ट दे रहा था यार, मतलब पता नहीं रिलेट कर पाओगे आप लोग, पक्की बात है कि आई यूज़ टू सिट फॉर मोर देन 12 hours a day. और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच हकीकत बता रहा हूँ. देयर वर टाइम्स व्हेन आई सैट रात को 9 बजे और सुबह 7 बजे उठा हूँ अपनी टेबल से, पानी और बिस्किट रख के बैठ गया. 9 घंटे 10 घंटे नहीं उठाऊँ टेबल से. एनसीईआरटी ख़त्म करी, बुक्स के चैप्टर्स ख़त्म किए, नोट्स बनाए. तो हार्डवर्क तो करते हैं यार अपन लोग. जब हम हार्डवर्क कर रहे हैं तो यार, हार्डवर्क कर रहे हैं तो सक्सेस डिजर्व करते हैं ना. और नहीं मिल रही है क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पता नहीं है, क्योंकि हमें वो कुछ चीज़ें लास्ट में आके मैसअप कर देते हैं, या फिर हमें बस वो किसी ने बताई नहीं है वो चीज़ें. तो यार, किसी ने बताई नहीं है वो चीज़ें, हमारे पास नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है हमारे जानने में कोई आईएएस आईपीएस जिसने क्लियर कर लिया हो, तो हम नहीं कर सकते क्या भाई? हमें कोई बताएगा नहीं क्या? नहीं बताएंगे यार, ऐसा नहीं है. विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड विल मेक इट हैपन. ओके, सो नाउ with that being said, let's talk about the plan. So the plan is, पहले सुन लो, उसके बाद बताऊंगा कितना फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है. So there are various components to this particular thing. The first component is the most important component, the single most important component, जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था और फिर होने लगा, जिसकी वजह से लोग बार बार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं. यार एक बात बताओ, अपन से स्कोर नहीं हो रहे 80 नंबर, लोग लेके आ जा रहे हैं 120 नंबर, लोग लेके आ जा रहे हैं 130 नंबर, और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार.
हम 80, 85, 85, 90 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये क्या बात हुई भाई? तो कुछ तो ऐसा है ना जो ये लोग कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। इससे आता है सबसे पहला कंपोनेंट, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसको मैं नाम क्या दूँ मेरे को नहीं पता है। वी कॉल इट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, आई कॉल इट इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक्स। ठीक है, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट जो बोलेंगे कि इंटेलिजेंट टेक्निक्स काम नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर 30 मई को मेरा रिज़ल्ट आया था, 30 मई 2022 को। मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 5 जून को पेपर था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बैठ पाऊँगा पेपर में या नहीं बैठ पाऊँगा, क्योंकि उसके जस्ट एक हफ़्ता पहले मेरा इंटरव्यू था। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था प्रीलिम्स का, रत्ती भर भी नहीं पढ़ा था। मैं जाके बैठा और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। एंड एटलीस्ट अभी स्कोर कार्ड नहीं आया तो आई विल नॉट से द एग्जैक्ट अमाउंट, बट एटलीस्ट 20 मार्क्स अबाउ द कट ऑफ। कैसे कर लिया भाई? अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैंने तो कुछ भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा था उस साल, कोई स्टैटिक रिवाइज नहीं कर पाया था मैं, फिर कैसे हो गया? तो ये चीज़ें काम करती हैं, आपको ट्रस्ट दिखाना है। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए काम ना करी हो क्योंकि आपको किसी ने आज तक ढंग से समझा ही नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर हेयर टू अंडरस्टैंड। ओके, so this is the first component. The second component is related to the single most biggest hurdle in the journey of a lot of people in prelims, which is what? CSAT. लोग जीएस में स्कोर करके आ रहे हैं, सीसेट में नहीं करके आ रहे हैं। और क्वालिफाइंग पेपर है भाई। मतलब एक टाइम था जब मैं 2021 में बच्चों को गाइड कर रहा था, बता रहा था कुछ बातें, तो जब लोग मुझे आके कहते थे कि सीसैट नहीं हुआ तो ना दुख सा हो रहा था कि यार सीसैट नहीं हो रहा है। उसके नेक्स्ट ईयर तो गुस्सा आने लगा यार कि ये क्या बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर पेपर है उसमें पता है अपने को कि कितना स्कोर करना है। GS1 में तो अपने को पता नहीं है, क्या पता 90 जाए, क्या पता 88 जाए, क्या पता 108 जाए, अपने को पता नहीं है। इसमें तो अपने को पता है, फिर भी अपन लोग गलती कर रहे हैं। तो इसको हम टैकल करेंगे सबसे पहले आरसीज से, क्योंकि मैथ वैथ सब जगह लेक्चर्स मिल जाते हैं, सब बात कर लेते हैं उस पर, कोई ये नहीं बताता भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व होता है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस एंड देन विल मूव टू द अदर एरियाज एज वेल। ठीक है, तीसरी चीज़, ये नया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ हाफ अ डेकेड मेरा, हाफ अ डेकेड मेरे किसी और दोस्त का, हाफ अ डेकेड किसी और दोस्त का, सो अ कंबाइंड जर्नी ऑफ वेरियस डेकेड्स, हमें समझ में आया है कि यार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो बहुत ही हाई यील्डिंग होते हैं। मैं पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ लूँ लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैं पूरी इकॉनमी पढ़ लूँ लेकिन फिर भी मैं WTO के IMF के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? मैं पूरी ज्योग्राफी पढ़ ले रहा हूँ, एनवायरनमेंट पढ़ ले रहा हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आ जा रहे हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। PT 365 मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरी पढ़ ली, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं टेक्नोलॉजी से जो आ जा रहे हैं और मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, गलत करके आ जा रहा हूँ। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन वो चीज़ें जो हाई यील्डिंग है, जहाँ से वो 15-20 क्वेश्चंस रिपीट होने हैं, उनकी थीम से रिपीट होने हैं, हम वो उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट इज द हाई यील्डिंग सीरीज, वेयर I'll not just tell you but teach you the high yielding areas for upcoming prelims 2023 on the basis of a scientific research of the previous year questions, a proven research. सबसे ज़्यादा मेहनत अगर मेरी कहीं लगनी है तो इसी चीज़ में लगनी है. So this is a very important component again. Then the fourth component will be tackling to some specific areas. जैसे इकोनॉमी के लिए there is a 550 MCQ की book by विवेक सिंह sir. Credits to him and thanks to him. We are grateful to him for economy, which is a very good book. I'll try कि ये पूरी बुक आपकी कवर करा दूँ. ऑलरेडी 150 के आसपास क्वेश्चंस करा चुका हूँ, वो भी दोबारा से आ जाएंगे एंड आगे के भी आ जाएंगे, तो ये पूरी की पूरी बुक आपकी कवर करा दूँ. दिस विल बी माई फर्स्ट थिंग. देन सेकेंड इज मैपिंग.
मैं अपनी पूरी 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 कोशिश करूँगा कि मैपिंग आपको इस तरीके से करा दूँ कि कम से कम आपके जो 3-4 क्वेश्चन इसके अराउंड आते हैं, कभी एनवायरनमेंट, कभी आईआर, कभी ज्योग्राफी, वो आपके सब कवर हो जाएं. ओके, देन एक सेकेंड, ओह पेज ही भर गया, सॉरी. हाँ, देन द फिफ्थ कॉम्पोनेंट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज सब्जेक्ट वाइज PYQs. ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, वाई इज़ दिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम एलिमिनेशन टेक्निक्स की और उन सब चीज़ों की बात करेंगे तो मेरे पास ये टाइम नहीं होगा कि मैं आपको ना कॉन्सेप्ट समझा दूँ किसी PYQ का. मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या इकॉनमी में ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है. तो सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट PYQs जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, वो कॉन्सेप्ट्स आपके एज इट इज़ जब रिपीट होंगे पेपर में तो आप उनको ठीक करके आओ. क्वेश्चंस रिपीट बहुत कम होते हैं. पैटर्न्स, ट्रेंड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड थीम्स, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होती हैं. पैटर्न्स, ट्रेंड्स, कॉन्सेप्ट्स, थीम्स, सबसे ज़्यादा ये रिपीट होती हैं. तो मेरा फोकस है कि मैं आपको ये सब बता दूं. एंड दैट इज़ वाई द फिफ्थ कॉम्पोनेंट. द सिक्स्थ कॉम्पोनेंट विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज फ्रॉम यू टू अस, फ्रॉम यू टू सत्यम. दिस इज द सिक्स्थ कॉम्पोनेंट. देखो यार, क्या होता है कि इस जर्नी में ना इंसान थोड़ा अकेला हो जाता है. ये बात सबको पता है, किसी से छिपी नहीं है. एंड दो आई इनकरेज पीपल कि आपको अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, बट ये चीज़ मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि इस प्रिपरेशन के रिलेटेड हर चीज़, अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक, आप अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पाते हैं, राइट. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट टू केटर टू दिस पर्टिकुलर थिंग, देयर विल बी, अभी मैं ये नहीं पता मुझे कि ये वाला जो सेशन है डेली होगा या कब होगा, बट देयर विल बी अ 10-15 मिनट्स का सेशन, मे बी ट्वाइस, मे बी 2 दिन में एक बार, मे बी एक हफ्ते में 2 बार. बट इसमें विल जस्ट डिस्कस अ फ्यू बेसिक थिंग्स जो आपके माइंड को काम रखेगी इन लास्ट के 21 दिनों में. ओके, आपको पर्सपेक्टिव में चीज़ें दे देंगी, आपको शांत रखेंगी, ताकि आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपकी जो थोड़ी एंग्जाइटी है वो थोड़ी मैं दूर कर सकूँ, राइट. तो विद द इंक्लूजन ऑफ all these components, what comes out is a single stop solution, a single stop solution to your UPSC prelims 2023 need. And what my experience or what my understanding about the game says कि अगर आपने ये चीज़ें कर ली हैं तो देखिए, आप 120 तो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इन चीज़ों से आपके 120 मार्क्स आ जाएंगे, सिर्फ इन चीज़ों से नहीं, लेकिन आपके अभी के स्कोर में 30, 35, 40 मार्क्स बढ़ जाएंगे. एग्जैजरेशन नहीं है, नहीं है एग्जैजरेशन. मुझे भी एक टाइम पे ये लगता था, मेरे भी एक बार प्रीलिम्स में 80 के आसपास ही मार्क्स आए थे, और अभी इस बार मेरे 115, 116 के आसपास मार्क्स थे. ठीक है, तो ये जो 35-36 मार्क्स का इंक्रीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि I have understood how it is done. And now it's my time to pay back. Now it's my time to democratize. Now it's my time to tell you these things. ताकि भर के हम लोग ऐसे लोगों से जुड़ सकें जिनको अपने हार्डवर्क का अब फाइनली पे ऑफ मिले. ओके, राइट. तो रहिए मेरे साथ इस 20 दिन 21 दिन की जर्नी में, एंड लेट्स डू समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर. लेट्स क्लाइम द एवरेस्ट. आइए उस पर्वत जैसे, पहाड़ जैसे प्रीलिम्स को क्लियर करें, चढ़ें उस पर, और 80 साल बाद का इतिहास अपने लिए रिपीट करें. लेट्स बी द एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नोगे ऑफ आवर लाइफ. लेट्स मेक इट हैपन. सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स कॉन्कर, because only what we understand we conquer, right? Only what we understand we conquer, and this is a journey from you to us. When will it start? It will start on 6th of May, on 6th of May, which is Saturday. आपको थोड़ा सा प्लान बता दिया जाएगा सैटरडे को
कि किस टाइम पे क्या वीडियोस आएंगी, किस तरीके से रहेगा, और आपके संडे से आपकी रेगुलर उन्हीं टाइम्स पे, उन्हीं टाइमिंग्स पे बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ आपके सेशंस आने शुरू हो जाएंगे, राइट? सो लेट्स मेक इट हैपन दिस टाइम, ठीक है? कर जाते हैं इसको, और चलिए फिर लेट्स मीट सून। लेट मी वाइंड अप दिस वीडियो। लंबी हो रही है, मैंने थोड़ी छोटी बोल करने की सोची थी, बट मेरे साथ ही होता ही है, थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं बातें कहते कहते। खैर चलिए, लेट्स वाइंड इट अप। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ स्टे काम, and let's make it happen. Let's conquer it. Thank you so much.